next class of spoken English. Hope you all are doing good. So let's continue our class to the next level. The first sentence on the whiteboard, you can see I have written 3 in 1. What does it mean? अब मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगी कि आपके साथ इंग्लिश में कन्वर्स करूँगी और you also try to answer me in English. Okay? Even though I can't hear you directly, but still try to answer my questions. 3 in 1 मतलब एक सेंटेंस होगा, उसमें 3 बातें आपको सीखनी है या 3 बातें फाइंड आउट करनी है. Okay? So what are those 3 things? First one is grammar. The sentence which is given, in that you have to carefully find out the grammatical things. Second is meaning. The word which you are taking, you have to find out the meaning of that word. And the last part is pronunciation of that word. Here few sentences, 8 sentences are written here on the board. And my question is, which verbs go with which preposition? Earlier we have studied what is preposition. In, on, at, बहुत सारे prepositions सीख चुके हैं. So here we are mainly focusing on in and on, because वही है preposition जो हमेशा maximum we do mistakes while speaking. Okay, our main focus is only spoken English. Clear? Okay. So one sentence is given. You will find out which is the verb. So that is the grammatical part. ठीक है. Second, what is the meaning of that particular word जिसको आपने verb क्रिया करके लिया है? What is the meaning of that word in that particular sentence? Clear? Okay. And the third part is, how will you pronounce that word correctly, or correct pronunciation of that particular verb. Okay? Ready? Let's go to the first sentence. See, I have written both in and on. We will find out which is the correct one. First sentence, you can all read with me. Along with me, you can all read it together. Let us क्यों नहीं बोला मैंने? Because apostrophe is given. It's short form. Let us बोलने की जरूरत नहीं है. Let's focus. Okay, not focus. Focus. Dash the current project. अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हम फोकस करें. If your ma'am is telling you like that. So which is the verb there? Which is the क्रिया? क्रिया कौन सा है? क्रिया शब्द है focus. क्या करना है हमें? फोकस करना. फोकस का मतलब क्या होगा? Concentrate. Okay? You have to pay stress or pay your full attention. अब तो समझ में आ गया ना, इतने सारे मीनिंग्स बता दिए. Let's focus. Dash the current project. In होगा या on होगा? Project means it's a particular task, it's a particular work. कोई एक इलेक्ट्रिसिटी का है प्रोजेक्ट या साउंड का है प्रोजेक्ट, वो एक पर्टिकुलर काम है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने नहीं बताया, पर्टिकुलर करंट प्रोजेक्ट. ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन द करंट प्रोजेक्ट. अंडरस्टूड? 3 things निकाले. We have found out the verb, the grammar. You found out the meaning of the word focus. Third, you did the correct pronunciation focus. Okay. Second sentence, our team, not our team participated dash the meeting. Okay. सपोज आपकी क्लास टीचर पूछ रही है, बहुत सारे टीम्स डिवाइड किए थे क्लास में. ओके, एंड मैम इज आस्किंग वन पर्टिकुलर स्टूडेंट, रोहन, ओके, टेल समथिंग अबाउट द मीटिंग, और व्हाट डिड यू डू टुडे. सो ही कैन टेल, आवर टीम पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग. इन्वॉल्वमेंट था, ऊपर से देख के मीटिंग को देख के नहीं आए, है ना. मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट, taking part in the meeting. So it will be in. Clear? Okay, once more I'll tell you the read it together along with me. Yes, ready? Our team participated, not participated, participated in the meeting. Okay? Next, third one. He
specializes dash wedding cakes. मतलब एक पर्टिकुलर बेकरी शॉप है और वहाँ का जो स्पेशलाइज कोई पर्टिकुलर केक पे स्पेशलाइज कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि रोज केक्स बन रहे हैं और बेच रहे हैं, बट वेडिंग केक्स के साथ नॉर्मल केक्स के साथ बर्थडे केक्स के साथ में उनका कुछ शॉप का कुछ स्पेशलाइज कुछ खास बात है. दैट इज ही स्पेशलाइजेस इन होगा या ऑन होगा, इन वेडिंग केक्स बनाने में. ओके, ही स्पेशलाइजेस इन वेडिंग. स्पेशलाइजेस मीन्स कुछ महत्वपूर्ण कुछ स्पेशलिटी. ओके, नेक्स्ट, इट डिपेंड्स डैश द वेदर. नाउ सपोज इसमें क्रिया क्या होगा, डिपेंड्स. सपोज हम कहीं पिकनिक जाने का या आउटिंग जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, पार्क जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं ओके विल स्टार्ट एट 5, विल रीच देयर बाय 5:30 एवरीथिंग, बट रेनी सीजन है, सो यू विल जस्ट टेल इट डिपेंड्स ऑन द वेदर. मौसम पे डिपेंड करेगा. ओके, इफ इट इज रेनिंग वी वोंट गो, और यदि नहीं है बारिश तो हम चलेंगे. इट डिपेंड्स नॉट डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द वेदर. नेक्स्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट डैश योर स्टडीज. ऑफन आपकी मम्मी पापा टीचर्स दे ऑफन टेल यू, क्या बोलते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. आप वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, टीवी में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, मोबाइल में हमेशा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देन योर पेरेंट्स और टीचर्स आर टेलिंग यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट मीन्स ध्यान लगाओ. कहाँ, डैश योर स्टडीज. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. स्टडीज जनरल टर्म है. ओके, नेक्स्ट, वी बिलीव डैश ऑनेस्टी. नाउ हियर honesty नहीं बोलते हैं, H is silent. We will be learning about the silent words later. अभी आप इतना ध्यान रखिए कि honesty बोलते हैं, H उसमें silent रहता है. Okay, we believe dash honesty. Believe, that is the verb. Believe means विश्वास है ना. हमें किस पे विश्वास है, honesty. Honesty means सच्चाई पे, है ना. Okay, we believe dash honesty. बिलीव इन, जो सच्चाई है उसमें हमें विश्वास, सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी. नेक्स्ट, शी इंसिस्टेड मतलब कंपेल करना या जो जबरदस्त करना, बार बार बोलने को इंसिस्ट बोलते हैं. शी इंसिस्टेड डैश टेकिंग ए टैक्सी. रोड पे खड़े हैं, हमें कहीं जाना है, बट कोई छोटी बच्ची है, वो शी इंसिस्टेड बार बार कंपेल कर रही, नो हम ऑटो में नहीं जाएंगे या हम पैदल नहीं जाएंगे. शी इंसिस्टेड डैश टेकिंग अ टैक्सी. शी इंसिस्टेड ऑन. ओके, नेक्स्ट, वी रिलाई मीन्स वी डिपेंड. ठीक है, वी रिलाई इज द वर्ब हियर. डैश सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस. कुछ एड फंड मिलने का है, ओके, और हम काफी समय से वेट कर रहे हैं, बट यू आर टेलिंग वी रिलाई, वी डिपेंड. ओके, वी आर डिपेंडिंग ऑन देम. हम और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि कोई और आके देगा फंड. वी रिलाई ऑन. ओके, नॉट इन ऑन. सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस. सो जस्ट 5 minutes फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस सेक्शन. कैन यू ऑल रिपीट अलॉन्ग विथ मी? मेरे साथ साथ रीड करेंगे सेंटेंस. All are ready? Is there any word which you didn't understand? Just go through. थोड़ा सा रिवाइंड करना या वापस ले जाना वीडियो, and then you go through the meaning once more. Okay, now we'll repeat all the 8 sentences. First, let's focus on the current project. Second, our team participated in the meeting. Third, he specializes in wedding cakes. Fourth, it depends on the weather. Fifth,
Please concentrate on your studies. Sixth, we believe in honesty. Next one, she insisted on taking a taxi. Next, we rely on support from government office. Okay, so this was the 3 in 1. We saw the grammar part, we found out which is the verb, which is the kriya, okay, and then the meaning of that verb, and then how to pronounce that verb. Clear? So this was the first part. The next part will go into the next thing. The next section for today's class is magic of 3. Can you guess something? आप कुछ guess कर सकते हैं magic of 3 का मतलब? Okay, 3 words and we are going to create some magic power. ठीक है? Let's go into magic of 3. मतलब 3 words एक साथ मिलाएंगे तो उससे क्या magic या उससे क्या कुछ different sense, different flavor आएगा हमारे sentence में. Flavor means smell. Okay? Now here I just look at this. एक कोई great personality ने, किसी great personality ने ये कहा था, Tell me I forget. आप मुझे कुछ बताओगे तो हो सकता है मैं भूल सकती हूँ. मनुष्य ना, मनुष्य तो भूलता ही है. Next, teach me I remember. आप मुझे लेकिन बताओगे तो भूल सकते, लेकिन आप मुझे सिखाओगे, पढ़ाओगे तो I can remember. Third thing, motivate me. आप पढ़ाने के साथ साथ मुझे उत्साहित कीजिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ. ओके, हर सेंटेंस में मोटिव. आप मेरे साथ बोलिए यस करेक्ट. ये सब टीचर्स क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? आपको मोटिवेट करने. मोटिवेट करने से क्या फायदा है? आई लर्न. वो मैं सीख जाते. सीखने से क्या होगा? भूलेंगे नहीं. तो ये 3 वर्ड्स है. टेल मी, भूल सकते हैं, बताओगे तो भूल सकते हैं. टीच मी, आई रिमेंबर. जो क्लास में पढ़ाते हैं वो हम याद रखते हैं, लेकिन आप मोटिवेट जो करते हैं वो हम सीख जाते हैं. ठीक है? ओके. इसी तरह से कुछ ऐसे 3 का सेट्स, 3 का सेट मतलब एक ग्रुप हम बताएंगे जिससे आपको आपके रिटन एग्जाम्स में भी, जैसे ऐसे राइटिंग है या स्टोरी राइटिंग है या पैराग्राफ राइटिंग है, इन सब में ज़्यादा मार्क्स को हमेशा याद रखें. कुछ समझ लीजिए यदि 4 बच्चों ने बराबर एक ही सेम स्टोरी लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं, चारों बच्चों ने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करेक्ट लिखा है, लेकिन एक बच्चे ने क्या किया है, वो वर्ड टू वर्ड के साथ में कुछ अपना एक्स्ट्रा, जैसे मम्मी किचन में नॉर्मल आलू की सब्जी सब घर में बनते हैं, लेकिन सब घर के आलू की सब्जी में स्वाद बराबर नहीं होता. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब मसाले डालते हैं उसमें आलू तो आलू ही है, प्याज तो प्याज ही है, हर घर में से. लेकिन जब मसाले डालते हैं कुछ जो डिफरेंट, हर माँ के पास एक कुछ दूसरा एक टिप होता है. टिप इन द सेंस, कोई एक मसाला ज़्यादा, सौंफ ज़्यादा डाल देते हैं, कोई इलायची ज़्यादा डाल देते हैं, कोई टमाटर डालते हैं, कोई टमाटर नहीं. कुछ भी एक जो डिफरेंस आता है वो उस फ्लेवर, उस स्मेल को, वो टेस्ट को चेंज करते हैं. तो जैसे 4 बच्चों ने बराबर लिखा, लेकिन एक बच्चे ने कुछ अपने 1-2 वर्ड्स डाल दिए, तो ऑब्वियसली यदि 5 में से बाकी को 4 मिले हैं तो उसको 4.5 मिलेंगे, है ना. तो ये एक आपका टिप है. आपको रिटन एग्जाम्स में भी याद रखना है. आप बोलते समय बोलेंगे तो भी आपको कुछ, आपका लेवल कुछ डिफरेंट लगेगा. जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला आपको बता दूं, आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, और व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम. तो आप बोलेंगे आई एंजॉय प्लेइंग कैरम, या आई एंजॉय प्लेइंग आउटसाइड. ठीक, ओके, सही तो है, गलत नहीं है. हाँ, बट एक दूसरे बच्चे से पूछा गया, सो दैट चाइल्ड इज टेलिंग आई एंजॉय रीडिंग and I like to dance and I like lot of traveling. तो वो आंसर इतना इम्प्रेसिव हो गया कि जो पूछ रहा है वो वाओ स्मार्ट बच्चा है ना, अपने आप ही मुंह से निकाल आता है पूछने वाले के. ओके, सो दैट इज द मैजिक ऑफ 3 I said. Clear now? Now you're not in doubt. Yes. Well, we'll just, you also read along with me.
मुंह खोलिए, ऑलवेज इंग्लिश रीडिंग मुंह बंद करके अपने मन में आप सोचोगे आई एंजॉय रीडिंग, नो नो नो, आपको मुंह खोल के जोर से बोलना है. ओके, आई एंजॉय रीडिंग, डांसिंग एंड ट्रैवलिंग. ओके, नेक्स्ट, शी लव्स ट्यूलिप्स, रोजेस एंड डेजीज. ये तीनों एक एक फ्लावर का नाम है. ट्यूलिप मतलब लिली का फूल जैसे होता है वैसे ही. शी लव्स tulips, roses and daisies. Next, they serve, servani. They serve Italian, Chinese and Indian food. Once again, repeat. They serve Italian, Chinese and Indian food. Next, good result requires hard work, long hours of study and good memory. ओके, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है गुड रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ हार्ड वर्क. इट्स नॉट रॉन्ग, रॉन्ग नहीं है, करेक्ट. लेकिन यदि आप ऐसे रिजल्ट आंसर दोगे, गुड रिजल्ट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी एंड गुड मेमोरी. 3 मैजिक ऑफ 3 याद रखिए हमेशा. नेक्स्ट, टू सम सक्सेस. आपसे कोई पूछ रहा है सक्सेस मतलब क्या है, विजयी होने का मतलब क्या है. कोई पर्सन सक्सेसफुल है तो उसके लिए कोई एक आंसर नहीं होता है एक्चुअली, है ना. आप सोचते हो जिसके पास बड़ी कार है वो सक्सेसफुल है, कोई और सोचेगा जिसके पास बड़े बंगले हैं वो सक्सेसफुल है, और कोई और सोचेगा जो छुट्टियों में दुबई जाते हैं और स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, अलग अलग हर वेकेशन में कहीं बाहर जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल पीपल है. देखिए वो आपका अंदाज है ना. तो पूरा मिला के शॉर्ट में आप 3 मैजिक ऑफ 3 याद रखिए. कोई भी 3 को बता दीजिए तो वाह, आपका आंसर वाह हो जाएगा. जो सम सक्सेस मीन्स फैंसी कार्स, ह्यूज मैंशन एंड लग्जरियस हॉलीडे. ओके, नेक्स्ट, माय ओपिनियन इज बेस्ड ऑन. आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट्स योर ओपिनियन, या आपके इस ओपिनियन का बेस क्या है. कुछ बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ऑन व्हाट थिंग इज योर ओपिनियन बेस्ड. आप किस आधार पे, बेस मतलब किस आधार पे आप इस बात को, आपके इस ओपिनियन को बता रहे हैं. तो यू कैन टेल माय ओपिनियन इज बेस्ड ऑन सोशल, कल्चरल एंड फाइनेंशियल रीजंस. सामाजिक, आर्थिक, ओके, सारे बातें मिला के मेरे ओपिनियन है. क्लियर. सो जरूरी नहीं कि ये तो जस्ट मैं एग्जाम्पल्स दी हूँ. आप अपने स्पोकन इंग्लिश में, आप अपने आंसर्स में, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू फाइंड आउट थिंक. कुछ अपने सोचते रहेंगे तो हमें कुछ कुछ नया आएगा. जैसे हम जब आपको पढ़ाते हैं, आपको बता के दे रहे हैं, तो हमें नए नए एग्जाम्पल्स इसी समय आते हैं. ओके, सो आपको भी सोचना है, तब आपको कुछ कुछ डिफरेंट मैजिक ऑफ 3 मिलेगा. यस, यूल ट्राई. और आपको लगता है कि लिख के रख लेना चाहिए, बाद में भूल जाऊंगा, तो यस, जरूर अपने बुक कॉपी में लिख के रख लीजिए, रफ कॉपी में जरूर लिख के रख लीजिए. इट विल बी वेरी यूजफुल. दिस मैजिक ऑफ 3 विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम. यू विल बी अ गुड ओरेटर. आपसे बात करना सब लोग पसंद करेंगे. वाह, इस बच्चे से बात करना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स नहीं देता है ना, थोड़ा सा लंबे आंसर्स अच्छे लगते हैं. एकदम 1 वर्ड आंसर जैसे नहीं बोलना है. ओके, मतलब एकदम अजनबी से नहीं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग, कन्वर्सिंग longer time. Okay, so this was the second part of today's section. Now moving on to the next part. The next part is advanced English and the intensifiers. Okay, I'm just giving you example of the 7 intensifiers, but there are many more. Okay, intensifiers का मतलब क्या है. जैसे खाने में एक्स्ट्रा डिफरेंट टाइप ऑफ मसाला, जैसे पिज्ज़ा है. पिज्ज़ा में जो कैबेज, शिमला मिर्च, गाजर, ये सब जो डलते हैं वो हमारे घर की सब्जियों में भी डलता है. लेकिन फिर हमें पिज्ज़ा या बर्गर क्यों ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें एक जो स्पेशल एक चुटकी मसाला जो डलता है वो कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन का बनता है. ओके, इसीलिए वो डिफरेंट होता है. उसी तरह से नॉर्मल वर्ब के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो वो इंटेंसिफाई. और ये जो पार्ट है ये एडवांस्ड इंग्लिश. एडवांस्ड इंग्लिश मतलब कुछ नेक्स्ट, कुछ ऊंचे लेवल में, कुछ हायर लेवल में. ओके,
This you can use for spoken English as well as for your written English, essay writing, story writing, paragraph writing, article writing, जो भी हो, you can use the intensifiers. Okay, the first one we'll just go through. Reena likes music. Okay, now Reena really likes music. तो यहाँ really जो word है, that is the intensifier. Likes music, लेकिन वास्तव में उसे म्यूजिक पसंद है, तो really is the intensifier. Going to the second one, we truly appreciate your hard work. यहाँ पे appreciate तारीफ कर रहे हैं, but when it is truly appreciate उसमें intensifier. इस तरह से मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ रखे हैं. पहले आप वी के साथ रीड कर सकते हैं. दो पार्ट में क्यों बांट दिया, ताकि आप ज्यादा अधिक से अधिक सेंटेंसेस आप यूज्ड टू हो जाएंगे लिसनिंग टू मोर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन, यू कैन ऑल्सो रीड अलोंग विथ मी. यस, सिंपल सेंटेंसेस. रीडिंग विल मेक यू गिव यू मोर प्रैक्टिस. वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू बैकअप योर फाइल्स. कंप्यूटर क्लास में हो, 2-3 टीचर्स है, दे आर टेलिंग यू वी स्ट्रांगली रिकमेंड, आप अपने फाइल्स को बैकअप, कुछ फाइल्स बनाया आपने तो उसका बैकअप ले लो. ओके, नेक्स्ट, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गो टू द हॉस्पिटल. आपके घर पे मान लीजिए कोई बीमार है, तो पड़ोस से कोई पर्सन आया और बोल रहा है आई स्ट्रांगली रिकमेंड, ऐसे रखे मत रहिए, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गो टू द हॉस्पिटल. नेक्स्ट, वी ऑनेस्टली बिलीव ही इज इनोसेंट. ऑनेस्टली बिलीव, विश्वास करते हैं बिल्कुल ऑनेस्टली, ऐसा आधा बनावटी या ऊपरी तौर से नहीं, बिल्कुल हम विश्वास कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है. आई ऑनेस्टली बिलीव यू डिजर्व गुड रिजल्ट. आपने इतनी मेहनत की है तो आपको अच्छा रिजल्ट आना ही चाहिए. ओके, नाउ सी, ये वी और आई जरूरी नहीं कि ऊपर वी लगाए नीचे आए, एनीथिंग, वो तो जस्ट मैंने आपको लगा के दे दिया कि आप सेंटेंसेस बना लें. वी डीपली रिग्रेट, खेदित मन से, ओके, या दिल की गहराई से खेद व्यक्त करना. वी डीपली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस टू आवर पैसेंजर्स. आप एयरपोर्ट में बैठे हैं, रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, जब ट्रेन लेट हो जाती है, फ्लाइट लेट हो जाती है, तो अनाउंसमेंट आता है, वी डीपली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस टू आवर पैसेंजर्स. नेक्स्ट, आई डीपली रिग्रेट मिसिंग योर वेडिंग. कोविड की वजह से आप किसी की शादी में नहीं जा पा रहे हैं, तो यू फील वेरी बैड. उसको कैसे लेकिन हम एक्सप्रेस करेंगे, आई डीपली रिग्रेट मिसिंग योर वेडिंग. नेक्स्ट, वी फुली रिकग्नाइज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट. आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया लेकिन आप फर्स्ट नहीं आ पाए, तो होल दिल्ली या ऑल इंडिया कंपटीशन में आपका प्रोजेक्ट गया लेकिन आप फर्स्ट नहीं आ पाए या आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो लेकिन आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं वी फुली रिकग्नाइज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट. ओके, आप फर्स्ट नहीं आए, दैट्स ओके, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था दैट वाज रियली गुड एंड वी फुली रिकग्नाइज, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या मान रहे हैं. नेक्स्ट, आई फुली रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश. इसलिए आप बैठे हो वीडियो देखने के लिए. यस, यू आर टेलिंग आई फुली रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश. नेक्स्ट, वी सिंसियरली होप यू विल विजिट अस अगेन. आपके घर पे मेहमान आके जा रहे हैं, देन यू आर टेलिंग बाय, वी सिंसियरली होप यू विल विजिट अस अगेन. सिंसियरली होप, वी होप यू विल विजिट अस अगेन, वो भी सही है, लेकिन हम बिल्कुल सिंसियरली दिल से विश्वास कर रहे हैं कि आप जरूर विजिट करेंगे. आई सिंसियरली होप यू अचीव योर गोल्स. ओके, मैं आपसे चाह रहे, आपसे ये आशा करती हूँ कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको. ओके, दैट इज माई प्रेयर, दैट्स माई विश. आई सिंसियरली होप. नेक्स्ट, वी पॉजिटिवली एनकरेज आवर स्टूडेंट्स टू यूज लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में से बुक्स निकाल के एक्स्ट्रा पढ़ना बहुत अच्छी बात है. सो द टीचर्स और द प्रिंसिपल एज अ टीम दे आर टेलिंग यू वी पॉजिटिवली एनकरेज, हम उत्साहित करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि आपको अपने लाइब्रेरी में से लेना चाहिए. वी पॉजिटिवली एनकरेज आवर स्टूडेंट्स टू यूज लाइब्रेरी. आई पॉजिटिवली एनकरेज यू टू स्पीक इंग्लिश एज ऑफन एज यू कैन. ये मेरा सेंटेंस है आपके लिए.
Okay, I positively encourage you to speak English as often as you can. जितना हो सके, जहाँ जहाँ मौका मिले, keep on doing it. Okay, shall we repeat once all the sentences? Ready? You can just take a long breath down because it's a long time sitting, same position. Take a long breath and down. Once again, long breath and down. Okay, ready? Ready? I'll just read slowly. You have to read it louder. Reena likes music. Reena really likes music. We truly appreciate your hard work. We strongly recommend you back up your files. I strongly recommend you go to the hospital. We honestly believe he is innocent. I honestly believe you deserve good result. We deeply regret the inconvenience to our passengers. I deeply regret missing your wedding. We fully recognize your contribution to the project. I fully recognize the importance of learning English. We sincerely hope you'll visit us again. I sincerely hope you achieve your goals. We positively encourage our students to use library. I positively encourage you to speak English as often as you can. थोड़ा सा लंबा है sentence, but still by this time I know you are thorough with. Once again, I positively encourage you to speak English as often as you can. Yes, good. Now हम केवल verb और intensifier को बोलेंगे. Yes, truly appreciate, really likes, strongly recommend, yes, honestly believe, deeply regret, fully recognize, sincerely hope, positively encourage. Okay, these are the some of the intensifiers. Now when you go through books, आपके books में, English के lessons में, news में, newspapers में, wherever you come through English, you can see the intensifiers join. तो आप एक बार read कर लेना कौन से verb के साथ कौन सा intensifier लगा हुआ. So and you write and keep. You will be the master of spoken English. Okay. Now going to the next section of today's class. The next part of today's class, silent alphabets. Alphabets A to Z बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक साथ नहीं, धीरे धीरे. आज के लिए हम A, B, C 3 alphabets लेंगे जो किसी किसी शब्द में, किसी किसी वर्ड में साइलेंट हो जाते हैं. साइलेंट मीन्स उनकी आवाज़ नहीं आती है ना. कभी कभी हम देखते हैं झुंड में बच्चे खड़े हैं, 5 बच्चे, 4 बोलते ही रहते हैं और एक नहीं बोलता है. लेकिन वही एक बच्चा दूसरे ग्रुप में जब रहता है बहुत बोलता है. तो मतलब ऐसा होता है ना. वैसे ही ए हमेशा ये साइलेंट नहीं है, ए की अच्छी आवाज़ होती है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स में, जब कुछ कुछ वर्ड्स के साथ जोड़ी में है वो, तब वो साइलेंट हो जाता है. ओके, जस्ट आपको एक फन के लिए एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया. साइलेंट ए हम कहा मेनली सी, ये हार्ड एंड फास्ट, आई मीन ये रूल हमेशा इस फॉर्म में एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन हमेशा आप ऐसे सोचते ही नहीं रहना ये कहाँ साइलेंट है, ये कहाँ साइलेंट है. नो, आप जब वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा. ना फर्स्ट वर्ड यहाँ. ओके, उससे पहले एक बात मैं बता दूं, ए साइलेंट रहता है जब उसके आगे सी अल्फाबेट लगा हुआ है. वंस अगेन, ए साइलेंट हो जाता है या ए की आवाज नहीं आती है उन वर्ड्स में जब वो ए के पहले सी होता है ना. वो आप बोलेंगे मैम हम तो स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमें तो स्पेलिंग जानने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल जरूरत नहीं है. ओके, डोंट वरी अबाउट द सेंटेंसेस स्पेलिंग्स, बट आपको ये याद रखना है कि उस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको स्पेलिंग आ जाएगा. यस, क्लियर. ओके, रोमांटिकली. रोमांटिकली, इसमें रोमांटिकली एक ही आवाज नहीं, रोमांटिकली. लॉजिकली. लॉजिकली.
ओके, नेक्स्ट बी कहाँ साइलेंट होते हैं? बी अल्फाबेट के सामने यदि एम लगा हुआ है तो बी साइलेंट, बी की आवाज नहीं, बंद। कुछ वर्ड्स ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए, आप भी मेरे साथ रीड कर सकते हैं। बॉम्ब, बॉम्ब नहीं बोलते, बॉम्ब। क्लाइंब, कोम, क्रम, डम, लैम, लिम, नम, थम, थंब, थंब नहीं, थंब। ओके, सो ये एक रूल। नेक्स्ट बी के केस में एक और रूल एप्लीकेबल है। जब बी के आगे टी लगा होता है तब भी बी की आवाज नहीं आती है। डेट, डेट मतलब कर्ज, डेट। डाउट, डाउट, डाउट नहीं बोलते, डाउट, डाउट मतलब शक, शंका। नेक्स्ट सटल, सटल मतलब कुछ अंदर की ओर रह गया, सटल। ओके, so these are some of the cases where B is silent. Coming to the third one, third alphabet C है। C के पहले, C लिखने के पहले यदि S अल्फाबेट है उस वर्ड में तो C साइलेंट हो जाता है। मसल, मस्कल नहीं बोलते, मसल। सिजर्स, फैसिनेट। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स। एक बार और आपको रिपीट करना है, मेरे साथ कर सकते हैं। लाउडर, ओपन योर माउथ। रोमांटिकली, लॉजिकली। बोम, क्लाइंब, कोम, क्रम, डम, लैम, लिम, नम, थम। नेक्स्ट डेट, डल, सटल। C is silent, muscle, scissors, fascinate. Okay, that's all for today. These are some of the ways or the words in which the alphabets are pronounced, are not pronounced louder, they are silent. Okay, hope you enjoyed this video. Bye, take care, meet you in the next class.